let's start from page number 58. On page number 58, the topic is different strands within the movement. So different strands. Strands refers to that different kind of, like strands generally refers to threads. Okay. So when we say different strands within the movement, we are referring to, I already told you that there are various people in the society having different kinds of aspirations. So it refers to those different people, categories of people in the society who were having aspirations from Mahatma Gandhi when he started the non-cooperation movement. What were those aspirations? Is it clear? So let's start with the non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. So you can underline this. It is important for you to remember the year in which it started. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspirations. I told you just now, specific aspiration means that a liberal participated, people in the towns participated, people in the countryside participated. So what were the aspirations of the people in the town? What were the aspirations of the people in the countryside? So as we proceed, we are going to read about that. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. It means that no doubt the non-cooperation and Khilafat movement were initiated, but the perspective of looking at the movement were different of the different people. So this is a very important question. Generally, you get this question in 5 marks. Okay. So the first is 2.1, that is movement in the towns. Movement in the towns means that how the people living in the towns reacted to the non-cooperation Khilafat movement started by Mahatma Gandhi in 1920. Okay. The movement started with class participation in the cities. Middle class generally refers to those people who is the working class. This term you have already read when he did French Revolution and Russian Revolution, the rise of the middle class, if you remember. Thousands of students left government controlled schools. We know that stage one, we had discussed already that what was the action plan. इसको हम कह सकते हैं action plan of the non-cooperation. Schools and colleges, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. So we have already read that boycott of schools, colleges, offices and courts. The council elections were boycotted in most of the provinces except Madras. We will not write this Chennai because we are reading in the years 1921. At that time, it was called as Madras only, and we are going to refer to it as such in the chapter. We are the Justice Party. Now you can underline this and write that the Justice Party was formed in 1916. The party of the non-Brahmins, okay, Brahmins and non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power. Clear? We have already done tussle there, and what we mean by tussle. Clear? So now also a party was formed, Justice Party, by the non-Brahmins. They felt that entering the council was one way of gaining some power. Something that usually only Brahmins had access to. Brahmins had access to means कि इससे पहले जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे उनको ही मेंबर बनाया जाता था, या उनके द्वारा ही पार्टीज बनाई गई थी. We know that not only the Britishers, India during the time, very ancient times, was divided into 4 varnas. आपको याद है आपने 7th स्टैंडर्ड में, उससे पहले भी 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है. Varna system in India were divided on the basis of their community in which they were born. Like Brahmins were on the top, clear. Then we have the Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras.
इज इट क्लियर? जिनको हम अनटचेबल, और बाद में गांधी जी ने उनको हरिजन्स बोला, तो शूद्रास। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो इंडियन सोसाइटी की इतनी पक्की हो गई थी कि ऑक्यूपेशंस वर आल्सो डिफाइंड अकॉर्डिंगली, कि जो ब्राह्मण्स थे वो दे वर कंसिडर्ड टू बी वेरी लिटरेट, इंटेलिजेंट, क्लियर एंड वेल रेड. Kshatriyas were the warriors, Vaishyas were the traders, and Shudras were those people who served the first three categories. Clear? And they were treated as very downtrodden or low in the society. इसी को हमने कहा Brahmins and non-Brahmins. तो something that usually only Brahmins had access to. ठीक है? तो जनरली क्या होता था कि जो काउंसिल में मेंबर्स होते थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी के होते थे, बट अब नॉन ब्राह्मण्स ने, देयर वाज अ, we don't have to go into the background of that, there was what was the issue between the Brahmins and the non-Brahmins, as a result which the Brahmins were only given this privilege. So now non-Brahmins also, they formed a party called as Justice Party in 1916. The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic, more dramatic. To sell their finished goods in India, they had taken a lot of money from India when 1914 to 1918 war was also going on, and now because industrialization was going in full swing in England, so there was a lot of requirement of money. And by following the non-cooperation method, boycott, I told you that Gandhi ji wanted to give them the, they wanted to tell, to strike the nail. हम कहाँ स्ट्राइक करते जहां हमें सबसे ज्यादा जरूरत है. सपोज आई हैव टू वांट टू हैंग अ पोस्टर, एक पॉइंट पे हम नेल को हैंग करते. सो गांधी जी किस चीज को ज्यादा पिन पॉइंट करके उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे? इकोनॉमिक, बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर more interested in having economic gains from India by hook or by crook. Were more dramatic. Foreign goods were boycotted. ये हम बार-बार पढ़ रहे हैं. Foreign goods means those things which were coming from other countries to India and they were sold in the Indian market. Liquor shops were picketed. Liquor shops, clear? It's picketing का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है. See in the a form of demonstration of मतलब हमने जाके आपने there are many things which are packing now also are not being allowed to open all over Punjab. When we are going, we are not paying any road tax. आप देखते हो ना आजकल रास्ते में, ठीक है ना, अभी भी हम ये टोल प्लाजा से निकलते हैं तो अब जब फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, रिडक्शन हो जाती है. अब क्या हो गया है कि वहां पर आप देखो जनरली ये जो टोल प्लाजा हैं वहां पर थोड़े से फार्मर्स बैठे होते हैं. तो इट मींस प्रोटेस्ट में उन्होंने गवर्नमेंट को टोल कलेक्ट करने नहीं दे रहे. ठीक है, तो ये पिकेटिंग हो गई ना, उसकी ब्लॉक कर दी हमने. इसी तरह किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप्स के जो शोरूम्स हैं, जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है मॉल्स में, आप अगर आप जाके देखो तो कुछ स्पेसिफिक शोरूम्स जो हैं वो बंद हैं. क्लियर? तो उसके आगे बोर्ड भी लगा हुआ है दैट द स्टोर हैज बीन क्लोज्ड ड्यू टू ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट. I saw myself, that's why I'm telling you that. I was not knowing that it will be closed, so when we went to the mall we saw and this board was over there. तो ये क्या हो गया? ये पिकेटिंग हो गया. ठीक है ना? अंडर द प्रोटेस्ट वी आर नॉट अलाउइंग. अब हम पढ़ रहे हैं ना लिकर शॉप्स पर पिकेटेड. आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया व्हाट इज द हम लोडिंग करते हैं. Goods and the import of foreign cloth have naturally
जब लोग फॉरेन क्लॉथ खरीदी में रहे थे, गांधी जी हैड एनकरेज्ड खादी। एंड खादी एनकरेज करने का क्या पर्पस था? एक तो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को एनकरेज करना, एक लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना। सेल्फ रिलायंट इन द सेंस कि गांधी जी वांटेड दैट ईच पर्सन कुड स्पिन एज पर हिज रिक्वायरमेंट। जैसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग में करते हैं ना, सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है कि द फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो इसी तरह गांधी जी का पर्पस था कि लोग चरखा चलाएं, अपने लिए इतना का कपड़ा बना ले। ठीक है, आपको पहले पता है कपड़ा किस पे बनता था? खड्डी पे बनता था। अगर आपने फर्स्ट पहले शुरू में आप रंगला पंजाब, यहाँ पर हवेली के साथ है ना रंगला पंजाब, अगर आप वहां पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर सारा एग्जिबिट था ना रूरल पंजाब का। वहां पर तो एक जगह पर वो खड्डी, लूम, जिसको हम इंग्लिश में लूम कह लो, आप उसको हम पर हिंदी में खड्डी कहेंगे, तो उस पे वो बैठ के खेस और दरियां बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह कपड़ा बनता है, आज भी बनता है। साउथ में कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ये क्लॉथ जो है अभी भी हैंड वोवन लूम्स पे बनता है। ठीक है, तो गांधी जी वांटेड कि एटलीस्ट अगर घर में 10 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 5 हैं, तो वो चरखे से कम अगर वो बाजार से नहीं खरीदते हैं तो अपनी जरूरत के लिए वो कपड़ा बना सकते हैं। ओके, द इम्पोर्ट ऑफ, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हम बाहर से कपड़ा खरीदते थे वो नियरली इट केम टू 50%। हाफ का मतलब है इट केम टू 50% वैल्यू in many places foreign fans foreign trade। obviously जब हमने बॉयकॉट के लिए किया है, अब जैसे आजकल हो रहा है, ठीक है, so many losses are being there, इकोनॉमी बंद हो गई है ड्यू टू कोविड 19। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, हम कोविड 19, तो उसमें क्या हो रहा है कि ट्रांजेक्शंस ही नहीं हो रही हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, ट्रांजेक्शंस ही नहीं हो रही हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड इज अफेक्टेड। As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went down. तो जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री सफर कर रही थी, हैंडलूम इंडस्ट्री सफर कर रही थी बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, एंड ब्रिटिशर्स वर सेलिंग द फिनिश्ड फैक्ट्री मेड गुड्स इन आवर कंट्री, स्पेशली क्लॉथ, सो नाउ दैट सफर्ड एंड होगा इंडिया। क्या उसके बाद क्या होता है? इफेक्ट, क्लियर, कॉन्सिक्वेंसेस कह दो, इफेक्ट्स कह दो, रिजल्ट्स कह दो, इन आइदर वेज। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं। इसी तरह ये मूवमेंट, सबसे पहले इसके कॉजेस हमने पढ़े कि क्या कारण थे, उसके बाद इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब अब हम इवेंट्स पढ़ रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ये कैसे चल रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में इंडिया में। अब हमने टाउन्स का पढ़ा सबसे पहले। अब टाउन्स में मूवमेंट तो चल पड़ी, ठीक है, बट पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अब इसका क्या इफेक्ट हुआ टाउन्स में, इसका फिर आफ्टर रिजल्ट क्या था। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन। ग्रेजुअली, पहले तो लोगों ने बहुत एंथुसियाज्म के साथ बहुत सारा कुछ किया जो हमने ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स में पढ़ लिया, बट ग्रेजुअली स्लोड डाउन का मतलब है आस्ता आस्ता ये जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी ये धीमी पड़नी शुरू हो गई, ये स्लो डाउन का मतलब है कि आस्ता आस्ता वो जो थोड़ा लोगों का एंथुसियाज्म था ऑफ इन द बिगिनिंग इन द पार्टिसिपेशन, वो कम होने लगा। अब हमने करना है रीजन क्यों, ठीक है, व्हाई इट स्लोड डाउन in the towns। ये साथ में आप नोट उस हमने क्या पढ़ा, okay, and poor people could not afford to buy it, so this is obvious, ठीक है ना।
हैंड लगता है, जैसे कैलीग्राफी है, जहाँ आपने नोट्स बनाने हैंड रिटन करते हो तो काम लगता है, अगर टाइम लगता है। अगर आपने कंप्यूटराइज्ड है, आपने एक कमांड दी, हमने 200 शीट 400 शीट एक ही बारी में निकाल ली, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द मशीन इट बिकेम। जो मैनुअल वर्क है हमेशा एक्सपेंसिव होगा। आप देखो हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी आप ये हिल स्टेशंस पे जाते हो तो वहां पर आप कभी देखते हो ना, ये जो स्टेट ओन्ड हैंडीक्राफ्ट, कई बार जैसे हमारे में भी पंजाब जो हैंडक्राफ्ट्स है, इट मींस these objects has been produced by hand, manual production है in product। तो जो हम मैनुअल कर रहे हैं इसमें लगते हैं कुछ तो नेचुरली वो प्रोडक्ट बनने में भी वो to buy it. How then could they boycott milk cloth for too long? शुरू में तो लोगों ने कोशिश की अपने आप को एडजस्ट करने की, बट जब ये अनसर्टेनिटी हो गई कि ये कितनी देर चलेगा, ठीक है, और इसका कोई और वायबल सॉल्यूशन नहीं था हमारे पास खादी के अलावा, तो people started having doubts और उन्होंने थोड़ा थोड़ा उस मूवमेंट को छोड़ के दोबारा जो चीजें वो यूज कर रहे थे उन पे आना पड़ा। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ क्लॉथ की बात की हमने, इंस्टीट्यूशन पढ़ा कि वो सब बॉयकॉट कर दिए, छोड़ तो दिए, पर फिर अगेन फॉर हाउ लॉन्ग? क्या हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूशंस टाइम पे थे? क्या हमारी इंडियन the British ones, these were slow to come up, so the students and due to some technical problem, so doesn't matter. So I'll continue. Am I audible, sir? Yes, ma'am. मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है जी। हाँ जी सर, करते हुए। हाँ जी अनम्यूट हो गया सर, ठीक है। So the वीडियो भी स्टार्ट कर लीजिएगा। And the teachers began trickling back to the back of it. They started coming back to they started going back to the institutions, and the government schools and the lawyers joined back their work in the government courts. उनको जाना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो livelihoods थी, जहाँ उनका routine था students का, वो suffer हुआ था. So this is about the movement in the towns. So next is 2.2, that is rebellion in the countryside. कि जो ये movement थी, non cooperation and खिलाफत movement थी, इसका जो countryside means in the rural areas, इसका क्या असर हुआ?
So next we'll move to that point. For the cities, from the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold and struggles peasants and tribals. तो अब हमने पहले कौन सा किया था टाउन्स में? मिडिल क्लास. ठीक है बेटा, इस चीज को ऐसे याद रखना है. टाउन्स, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में हमने देखा सारे दोज पीपल हु आर वर्किंग इन एट डिफरेंट ऑफिसेस, कोर्ट्स एक्सेट्रा. अब हम कंट्री साइड में चले गए तो नेचुरली हमारे पास कौन आ गए? peasants. And peasants is a term which you have read so many times. And tribals, which were developing in different parts of India in the years after the war. Awadh, in Awadh, peasants were led by Baba Ramchand. ठीक है, Awadh area. A sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. अब जो बाबा रामचंद्र, बाबा लगा ना उसके आगे, तो वो एक सन्यासी बन चुका था. तो अवध में मूवमेंट को इनिशिएट इसने किया बाबा रामचंद्र ने. बट यहाँ इस स्टेटस पे आने से पहले वो क्या था? वो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर. इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है? आपने स्लेवरी के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना स्लेवरी. जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की थी तब आपने स्लेवरी के बारे में भी पढ़ा था. तो स्लेवरी था दैट इज टू बाय एंड सेल ह्यूमन बींग्स. ये चीज हमने तब भी पढ़ी थी जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी. तो उसके बाद आपने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी. हमारे पास एक पूरी डायनेस्टी ने इंडिया में रूल किया जिनका जो लीडर था सबसे पहले इनिशियल जो था एक स्लेव था, बट लेटर ऑन ही वेंट टू बिकम अ रूलर. तो हमारे पास स्लेव डायनेस्टी भी थी. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडेंचर्ड लेबरर की. क्लियर? इंडेंचर्ड लेबरर इज नॉट सेम एज स्लेव. सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, इंडेंचर्ड लेबरर इज नॉट सेम एज स्लेवरी. इंडेंचर्ड लेबर का मतलब है कि हम विलिंगली, सपोज आई एम स्टेइंग इन इंडिया और आई एम स्टेइंग इन इंग्लैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, नॉट ऑफ टुडे टाइम्स, राइट? उस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1921-22 when this movement was going on. तो उस टाइम पे सपोज आई वाज इन इंग्लैंड एंड आई डिड नॉट हैव एनी वर्क. Clear? I was without work. हमें पता है कि lot of hardships were there because the country, all the countries had gone through the First World War. तो हम willingly, हमें कोई ऑप्शन देता है कि मैं आपको ट्रैवल करवा के, ठीक है, आई विल टेक यू टू इंडिया और टू सम अदर कॉलोनी फॉर वर्क. ठीक है, आपको मैं लेके जाऊंगा, जैसे ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं, आपको मैं लेके जाऊंगा, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, कोई ये नहीं लगेगा. वहां पर जाके आपने सिर्फ काम करना है, 3 महीने काम करना है, 6 महीने काम करना है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, आप उस कंट्री में. इंडेंचर्ड लेबर का थोड़ा सा कंसेप्ट ये था, क्लियर, कि है तो वो उसके अंडर ही और शी इज अंडर दैट वर्कर ओनली, जिसने उसको ये दिया और जिसको हमने अपना कंसेंट दे दिया, हम उस पर्सन के अंडर ही काम करेंगे. ठीक है, बट यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है कि हमें किसी ने जबरदस्ती बेचा या खरीदा. क्लियर? हमने कहीं ना कहीं टू फाइंड अ, you can say a livelihood or a safe passage to a other country where work was available, we have moved. पर वहां पहुंचने के बाद क्या कंडीशन होती थी, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. कि वहां पर जो अपने आप को ऐसे एग्री कर लेते थे, डिफरेंट कंट्रीज में चले जाते थे, तो वहां पर जाके उन वर्कर्स की, जो इंडेंचर्ड लेबरर हम टर्म यूज कर रहे हैं, बहुत पिटिएबल कंडीशन होती थी उनकी. ऑफन दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द ओनर्स. जो उनको लेके जाते थे वो उनको बहुत ज्यादा बैडली ट्रीट करते थे. एंड दे वुड हैव टू वर्क, जो उन्होंने एग्रीमेंट की होती थी उसके अकॉर्डिंग, वो प्लांटेशंस थी या कोई और तरह का काम उनसे जो भी करवाते थे वो उनको करना पड़ता था इन ल्यू ऑफ. इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है बदले में उनको क्या, खाना मिल जाता था, रहने की जगह मिल जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो he was working as an indentured laborer. Fiji is a country, okay, it is an island country in South Pacific. The movement there was against the talukdars. अब talukdars कौन थे? जैसे हमने landlords term पढ़ी है, इसी तरह talukdars were the aristocrats who formed the ruling class and were the owner of vast lands. तालुकदार्स कौन थे? They were landlords, landholders. Aristocrat हम पढ़ चुके हैं, those who were privileged class होती है, उन्हीं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं aristocrat.
who formed the ruling class and they were the owner of vast land. और अब प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? peasants and tribals. तो हमें पता है peasants are those people who do not own land and they work for the others on their land. Against the talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents. Exorbitantly, ठीक है, एक वर्ड होता है high, rents तो है ही है कि बहुत ज्यादा. Exorbitantly means जरूरत से ज्यादा, very high. सपोज हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, हमें पता है कि इसका रेट 500 से 1000 के बीच में होगा, पर जब हम वो चीज खरीदने जाते हैं तो हमें कोई वो जो बेचने वाला है वो कहता है नहीं जी इसका तो रेट क्या है, 6000 है, 7000, ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज एक्सॉर्बिटेंट प्राइस्ड. मींस कि हाँ ठीक है, माना कि ये चीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, 500 की होगी, 1000 की होगी, बट अगर हमें उसी चीज का रेट कोई 6000 कहता है, 7000 कहता है, सो देन वी यूज द टर्म एक्सॉर्बिटेंट. ओके, एक्सॉर्बिटेंट मींस की जरूरत से ज्यादा. क्लियर? सो इसी तरह उस टाइम पे जो ये पीजेंट्स थे वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट? बिकॉज दे वर डिमांडिंग एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स. हाई तो है ही है, ठीक है, पर जरूरत से ज्यादा. Okay, and a variety of other cesses. Cesses एक तरह का टैक्स होता है. बच्चे मैं आपको ये साथ साथ में सारी टर्म्स वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ. You, I hope you are sitting with your textbook and you must underline these points. ठीक है, आपने साथ साथ पॉइंट अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिख लेना है. क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो सोर्सेस हैं आपको इस बार अब बोर्ड के एग्जाम में आपको जो सोर्सेज आने हैं 16 मार्क्स के, आपके टेक्स्ट बुक के बेस्ड पे आने हैं. जो हम पढ़ रहे हैं इसी में से कोई भी 2 पैराग्राफ्स आपको पेपर में आ जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे. सो आई एम एक्सप्लेनिंग सेस. अगर आपको सेस का मीनिंग नहीं पता होगा तो अगर आपको सपोज करो यही पैराग्राफ वहां पर आ जाता है, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड व्हिच इज डिफिकल्ट. आई एम थिंकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू and you must know the meaning. तो cess क्या होता है? Cess is an additional tax which the government imposes. ठीक है, it is an additional tax. टैक्स तो हम देते हैं, कई तरह के टैक्स देते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स देते हैं, जैसे अब हम जीएसटी देते हैं, तो टैक्सेस तो हम ऑलरेडी देते हैं जो कॉमन होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं हम, ठीक है, बट उसके अलावा सेस इज एन एडिशनल. I'm using the word additional. It is an additional tax imposed by the government due to any financial exigencies. Exigencies का मतलब है कि कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट को कुछ और पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है. अब now you see petrol prices are increasing. ठीक है ना, petrol prices are increasing, LPG prices have increased. ये प्राइस इंक्रीज क्यों होता है? ऐसी कमोडिटीज का जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होती है उनका प्राइसेस इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू जनरेट मोर रेवेन्यू. क्लियर? और उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने एक एडिशनल, पहले से ही हाई रेट था, ऊपर से सेस भी लगा दिया. जैसे ये काउ सेस एडिशनल गवर्नमेंट ने लगाया, ठीक है, टू कलेक्ट some money so that they can make cow shelters. ठीक है, अब इसका क्या होता है कि ये टैक्स लग गया. सपोज गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट थी जो कि साल में या 2 साल में पूरी हो गई, तो ये सेस हटाया भी जा सकता है. ओके, इसका ये डिफरेंस है कि ये अगर एडिशनल टैक्स की फॉर्म में हमारे पे लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब गवर्नमेंट की वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ये हटाया भी जा सकता है. ओके, द गवर्नमेंट कैन आल्सो रिमूव फॉर द टाइम बीइंग, वो इसको हटा भी सकती है. Peasants had to do begar. बेगार का मीनिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेबर forced to contribute without any payment. ठीक है, and work at the landlord's farms without any payment. As tenants, tenants क्या होता है? जिसने किराए पे लिया या किराए पे रहता. They had no security of tenure. Means कि tenure का मतलब होता है कि उनको कितनी देर काम पे रहेंगे.
टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड, टेन्योर रेफर्स टू टाइम पीरियड। तो पीजेंट्स को कोई श्योरिटी नहीं थी कि आज अगर वो काम कर रहे हैं तो वो कितनी देर तक इधर काम पे रहेंगे। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड so that they could acquire no right over the leased land. Evicted का मतलब होता है regularly evicted means कि उनको बार बार एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे भेज दिया जाता था so that they could not become permanent workers and demand for the workers rights. ठीक है, ऐसे होता है ना, जब हम कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं पहले हम टेम्परेरी पोजीशन पे होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब हम वहां पर काम शुरू करना है तो हम वहां पर कहीं परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, तो हमारे जो प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं एक टेम्परेरी वर्कर से। ये हम बाद में इकोनॉमिक्स में करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी करेंगे हम, तब आपको और भी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो जो थे ओनर्स थे वो क्या करते थे, पीजेंट्स को थोड़े दिन काम करवाया फिर कहीं और भेज दिया, ठीक है, एक जगह से हटा दिया, सो दैट कि वर्कर्स जो हैं वो अपना हक ना जमा पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये मूवमेंट चल रही थी, जब आपने उसमें रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा है ना, तो रशियन रेवोल्यूशन में मार्क्सिज्म का जो व्यू था वो क्या था कि फैक्ट्री ओनर तो है, उसने फैक्ट्री तो लगाई है, बट असल में फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो किससे आ रहा है, वर्कर से आ रहा है। अगर वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको जो है, जो ओनर है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए जो प्रॉफिट है वो सिर्फ ओनर का नहीं है, वो वर्कर का भी है। ठीक है, ये हमने किसमें किया था, मार्क्सिज्म की जो हमने फिलॉसफी की थी, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी की थी ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक पीजेंट है, खेत है, वो खेत में काम कर रहा है तो लैंडलॉर्ड को फसल मिल रही है, ठीक है, और वो उसको सेल करके उससे प्रॉफिट ले रहा है। इट मींस द लैंड टू द टिलर। क्लियर, लैंड टू द टिलर का मतलब है कि जो जोत रहा है उस खेत को, खेत उसका ही होना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन। तो इसी तरह कोई ना पैदा हो, जो पीजेंट्स को थोड़ी देर ही काम करवाते थे, उसके बाद उनको कहीं और शिफ्ट करते थे, तो दूसरे रोटेशन करते रहते थे कि सो दैट उनके पास कोई परमानेंट वर्कर जैसा कोई पर्सन ना आए कि जो इस तरह की उनसे डिमांड करे। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब हमने देख लिया कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अब वो क्या चाह रहे हैं, वो चाहते हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स हम पढ़ रहे हैं। अब पीजेंट्स क्या चाहते हैं, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड